So welcome everyone to this session on literacy, financial literacy planning. We have with us Ms. Ruchika Singh, who is a faculty with ICICI Academy for Skills Development. And we have with us Mr. Milind Ashrit sir also, who is a trainer. I request Ruchika ma'am to take this further and introduce Milind sir to you guys. Ma'am. Ruchika ma'am. Sorry, ma'am, I was on mute. I was not able to unmute. Okay, good morning, everyone. Thank you, Pranjali ma'am, once again for giving me this opportunity to interact with you and your students. So today's session is very, very special because it is on financial literacy planning, a session which will guide you, a session which will enlighten you on your, money management. That is why it is very, very special. Also, it is special for another reason, because something like this, I'm very sure, you have not heard, or you don't know beforehand. You've not had, any experience with this, because we will start from very, very basics as to why savings are important, what are the kinds of investments. तो हम लोग जो आज के सेशन में बात करने वाले हैं, ये सारी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज हमको लगता है कि आप एज एडल्ट्स, आपको अपना मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, आपके पैसे के साथ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. एक थोड़ा सा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस चीज को लेके कि जनरली औरतें अर्न तो करती है, बट उनको वो पैसों के साथ क्या करना है वो हस्बैंड डिसाइड करता है, या फिर फादर डिसाइड करते हैं, या फिर भाई डिसाइड करता है. क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाँ ठीक है, आप कमा रहे हो, वेरी गुड, पर तुझे नहीं समझेगा. जनरली व्हेन फाइनेंस इज इन्वॉल्व्ड, इट इज सेड तुझे नहीं समझेगा. तो ये उस चीज को भी आज हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं, एक पहल करने वाले हैं. इसीलिए भी ये सेशन इज वेरी, वेरी स्पेशल एंड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. I'll just take quickly a minute to introduce Milind sir. Milind sir's full name is Milind Ashrit sir, and sir has been associated with the Union Bank of India before this, and वो हमारे साथ financial education counselor है ICICI Foundation के साथ year 2018 से, और वो based out of Mumbai है. और वो आज इस सेशन के लिए स्पेशली जस्ट फॉर दिस सेशन sir is joined us from Mumbai office, and we are so glad to have you, sir. I'm sure everyone is. So thank you for joining in, and we will quickly start off. Sir, sir, will you be playing the PPT, or I'll quickly I'll play the PPT. I'll play the PPT. Yeah. Okay, sir. So please, can we just have the first slide? I'll just introduce and then pass it on to you. Sir, it is in the process. It's in the process. It's saying yes, sir. Sir, if we can just have this in the PPT mode, in the full view mode. Slideshow mode. So, can you view this? Sir, actually, it's the same. The same. Yeah. We are not getting the full screen mode, actually. Okay, you want the full screen mode. Recording in progress. You can go ahead. I'm not finding it how to do it. You can tell me. I'll move to the next slide when you tell me. Ruchika madam, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. If you can go to the slideshow wala menu, on the bar it's written, and if you can make it full screen.
I think Madam Ruchika has shared a screen to you, I think PPT. Okay, acha, it's not you who, acha, Ruchika, just a second, sir. Okay, ma'am, done. Milinsa, I'll share it from here. I'll just start off and I'll share it from here. No problem. Should I stop it now from here, my side? Yes, please. I can stop it. No? Yes. Okay, you play it from your side. Yeah. Ma'am, it is saying the host that I as a participant cannot be sharing the PPT. Is there some permission that I need? Please check now. Yeah, just a second, ma'am. Yes, ma'am, now I can do it. Yes. Perfect, ma'am. Okay, great, we got it. Right. Okay, so let's quickly begin. My video, audio, the PPT, all is good. Yes, Yeah. please go ahead. So now we are going to financial literacy planning. हम लोग पूरा सेशन जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप करवा देती हूँ कि मिलिंद सर एंड मैं, हम दोनों यहाँ पे ज्वाइन किए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग की बेसिक्स आपको समझाने के लिए कि सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास आज कौन कौन सी अवेलेबल है, इन सबको डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. So we will start with very basics of the financial planning, and I will share the screen. So 4 points to remember. So what are these 4 points that you need to remember? Financial planning आप जब भी करें, जब भी अपनी फैमिली के लिए financial planning करें, make sure that every member of the family has a saving account. कई बार क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं पैसों के, दे हैपन इन कैश. प्रोबेबली आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, दे अर्निंग मेंबर्स है, पर उनको सैलरी कैश में मिलती है. यू नो, दे डोंट गेट इट डिपॉजिटेड इनटू अ फॉर्मल बैंक अकाउंट. वो सारा पैसा वो जोड़ के गेहूं के डब्बे में या फिर चावल के डब्बे में रख देते हैं, मटके में रख देते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. उनके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें उनके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और वो उसका एक स्टेटमेंट उनके पास हो या पासबुक उसके बारे में हो उनके पास. ये बहुत ही बेसिक चीज है जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं. दूसरा है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. मैं आप लोगों के साथ पर्सनली मेरे निजी जीवन से एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी. एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था मेरी फैमिली में भी बहुत रिसेंटली, जहां हमको इंश्योरेंस वाज वेरी वेरी यूजफुल टू अस, है ना. इट वाज वेरी वेरी यूजफुल. आई एम थिंकिंग कि अगर शायद वो नहीं होता तो हम लोग और एक तो बर्डन होता ही है, एंड देन यू आर मोर ऑन द फाइनेंशियल बर्डन. सो ये आपसे मैं, जब भी मैं और मिलिंद सर वी आर टॉकिंग इन द सेशन, हम लोग आपसे कुछ भी ऐसा स्टोरी वाला नहीं शेयर कर रहे. हम आपसे रियल प्रैक्टिकल चीजें शेयर करने वाले हैं. तो एवरीथिंग दैट वी से, एवरी पॉइंट दैट वी आर मेकिंग, प्लीज नोट इट डाउन कि हाँ भाई फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बताए गए थे हमको कि सेविंग अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, और क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. अगर कोई अर्निंग मेंबर है और वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, उनका पीपीएफ जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो उनके अकाउंट में जमा हो रहा है. उसके कुछ क्लॉजेस होते हैं कि आप इसका विड्रॉल कब कर सकते हो, कितने % में इसका विड्रॉल कर सकते हो. तो एक आपका सेविंग
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी होना बहुत जरूरी है। और पेंशन या मंथली इनकम स्कीम, व्हाटएवर जो भी आप जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं वहां से एक मंथली पेंशन आपको आ रही है, या उसका कोई ऐसी कोई इनकम जिसको आपने पैसा सेव किया और आपको मंथली इनकम मिल रही है उससे, या फिर आपने कहीं पे आपके पास कुछ है जो आपने रेंट आउट किया है, उससे एक मंथली इनकम जनरेट होती रह रही है, आपने कहीं पैसा सेव किया है, आपने एफडी की है, आपने आरडी किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, रिकरिंग डिपॉजिट किया है, ये इससे आपका एक मंथली इनकम जनरेट होते रह रहा है ना। तो ये बेसिक चीजें चार हर हाउस होल्ड में जो होनी चाहिए डेफिनेटली। और जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आप इसको जरूर अपने ध्यान में रखें, जरूर जहन में रखें कि यार ये चार चीज तो मुझे फॉलो करनी है। ये मैंने सेशन में सुनी थी, और ये सेशन में मैंने सुना था, ये मुझे और चार दोस्तों को बताना है। हम लोग जनरली जब मिलते हैं फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि यार ये मूवी कैसी थी, वरुण धवन ने क्या बोला, आलिया भट्ट ने क्या किया, कौन सा सॉन्ग बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके बारे में आपको अपने घर पे और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये जरूर डिस्कस करना चाहिए कि यार तुझे पता है सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए घर पे हर जगह। 10 ईयर ओल्ड 10 साल के बच्चों का एक सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़े से अवेयर रहें, थोड़ा सा इस सेशन को ध्यान से सुने। So Milind sir, I'll continue with the presentation. I'll keep changing it over to you Yeah, in terms sure. of explaining the presentation, sir. Sure, sure. Okay, carry on. Okay, Carry on. okay, sir. Sir, are you there? Yeah, I'm there. Please go ahead, sir. I should go ahead. Yeah, sir. Yeah, can go to the next screen. Yeah. Good morning, students. Good morning, friends. Madam has just taken us to the basics of financial literacy. Come to the first screen, madam. Sir, Bas, yeah. yes. And okay, from here only. Yeah, thank you. Thank you. She has taken you through the very basic of financial planning. जैसे उन्होंने बताया सेविंग्स, इंश्योरेंस, पीपीएफ एंड पेंशन और एमआईएस, ये चार चीजें इसके लिए जरूरत है, बिकॉज फ्रॉम हियर यू स्टार्ट योर जर्नी टू द एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल बजटिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक प्लेस। आपके भविष्य में यू कैन से अबाउट 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन, जब आप सोचोगे, रिकैप करोगे, तो मालूम पड़ेगा कि ये चार चीजें थी, इसलिए आई कुड सर्वाइव ऑल दिस फाइनेंशियल हिकअप्स दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग माय लाइफ। ये आपको एक फाउंडेशन बना के देंगी आपके जीवन में। ये चीजें है नीचे, ये मजबूत है, ये नींव के पत्थर है, और फ्रॉम हियर यू कैन बिल्ड योर फाइनेंशियल फ्यूचर। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट स्क्रीन। रुचिका मैडम, मैडम कैन यू हियर मी? हाँ, बस बस, इनफ इनफ इनफ, थैंक यू। एक बार आपकी प्लानिंग हो गई, ऑल दोस 4 बेसिक पॉइंट्स इन योर किटी, देन एक्चुअली यू स्टार्ट बजटिंग द इनकम। आपका जो भी इनकम आ रहा है घर पे, योर पर्सनल इनकम, योर फैमिली इनकम, ऑल टुगेदर पुट टुगेदर, आपको उसको बजट ही करना पड़ेगा इस प्रकार से कि देन यू आर गोइंग टू मीट ऑल द प्लानिंग दैट यू आर डन इन द फर्स्ट स्लाइड। आपको मान लो इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, तो 40% ऑफ द इनकम शुड गो फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस, बिकॉज आपके जो महीने के खर्चे हैं, घर का जो भी रेंट है या ईएमआई है, लाइट बिल है, ग्रोसरी है, फूड एक्सपेंसेस है, ये रोज की जो जरूरतें हैं, ऑल दिस पुट टुगेदर इट बिकम्स ए मंथली एक्सपेंसेस। उसके लिए हमसे कम से कम 40%
At least 40% you have to budget for that, because without that you cannot survive. वो तो चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, so and so forth. Similar 40% should go for long term investment. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निवेश, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ लोग तो 30-35 साल का भी कर लेते हैं. दिस इज टू सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, और ये बहुत 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 आवश्यक है. सो 40% should go for long term investment, and the balance 20% it should be budgeted for wants. Previously it was called luxuries, like अभी मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, व्हीकल्स है, ये कुछ साल पहले लग्जरीज थी. आज वो दैट हैव बिकम वांट्स नाउ. उसके सिवा हम चलते नहीं. जैसे आज हम लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन, वी आर ऑल मीट, आई एम फ्रॉम अ लैपटॉप, मैडम इज फ्रॉम लैपटॉप, कुछ लोग लैपटॉप या मोबाइल से, एंड्रॉइड फोन से. सो द एंड्रॉइड फोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर लग्जरीज सम टाइम बैक. नाउ इट हैज बिकम अ वांट. सिमिलरली अपने घर में कुछ फंक्शन होते हैं, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं. So for that I had to budget 20%. Hence, I had to make a budget for the entire 100% of my income. आपको जो भी इनकम है, 10,000 है, 5 लाख है, 50,000 है, एनी एक्स अमाउंट, आपको जो भी इनकम है 100% यू शुड बजट. आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं अभी 10,000 में से 8,000 का बजट करूंगा, 2,000 में अपने लिए खुद के लिए रखूंगा. दैट इज नॉट अलाउड. नो, इज नॉट अ प्रॉपर थिंग. आपको पूरे के पूरे 100% का बजटिंग करना पड़ेगा. दिस इज अ स्टैंडर्ड 40-40-20 डिपेंडिंग अबाउट द फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन फैमिली. घर में कितने लोग कमाते हैं, घर में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, हर एक का नेचर अलग है. वो सब सोचकर अपने अपने फैमिली में अपने को ये बजटिंग करना पड़ेगा. बट सी दैट वांट्स एंड लग्जरीज हैज अ मिनिमम परसेंटेज, long term investment has a maximum percentage, and the second in line should be a monthly expenses. Expenses आप जितना कम करोगे उतना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यू कैन डेडिकेट दैट मच अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो 100% आपको बजटिंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट स्लाइड. या ओके. जैसे मैडम ने बताया, सेविंग्स इज अ फाउंडेशन. तो सेविंग्स किसकी जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? So there are 3 basic importances. One is emergencies. Emergency हमको बोल के नहीं आती, बता के नहीं आती. They just pop up. Unexpected expenses like illnesses, बीमारियां, वो बता के नहीं आती. They don't knock the door कि भैया मैं आ रही हूँ. It just comes. एक्सीडेंट होते हैं, कुछ अपघात होते हैं, and some contingencies which are to be met immediately. इसके लिए कहां से पैसा आएगा? It will come from the savings only. फ्यूचर नीड्स, आज मैं खरीद नहीं सकता, उसको मुझे कुछ पोस्टपोन करना पड़ता है. मे बी माय एजुकेशन, और कुछ मुझे घर में लेनी है, टीवी लेना है, एक्सेट्रा. दीज थिंग्स दे रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. आज उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकता, बट आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. 6-7 महीना, 8 महीने, 1 साल के बाद मैं खरीदी करूंगा. सो फॉर दैट इज फ्यूचर नीड्स. उसके लिए भी सेविंग्स इज इंपॉर्टेंट. एंड लार्ज एक्सपेंसेस विच आर, आई सेड, एनीथिंग अबव 5 years, 5, 10, 15 years. घर लेना है, घर में कोई शादी ब्याह है, बच्चों का हायर स्टडीज है, अपने खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है. These are large expenses. उसके लिए भी सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार सेविंग हमारे फिक्स हो जाएगी तो यू कैन डू द प्लानिंग एज पर माई रिक्वायरमेंट. फ्यूचर में करना है, अभी करना है, ये सब सेविंग्स इज अ बेसिक थिंग. नेक्स्ट. या, so how do you save? What are the tips for savings? बजटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल. हमने शुरू में देखा, सेकेंड स्लाइड में,
40-40-20 एक सैंपल देखा था. इट कैन चेंज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. एक बार होने के बाद यू नीड टू सेग्रीगेट इनकम एंड एक्सपेंसेस. अब यू आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप लोग. यू आर वेरी वेल अवेयर नोइंग दिस कंप्यूटर्स, एक्सेल शीट्स एक्सेट्रा. तो आपने घर में एक अपना एक्सेल शीट बनाइए. एक शीट में ऑल जॉट डाउन ऑल द इनकम्स एंड सेकेंड शीट जॉट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस. इस प्रकार होने के बाद उसका टोटल कीजिए. द इनकम शुड ऑलवेज एक्सीड द एक्सपेंसेस. इट्स नॉट बी जब ऐसा वर्षा एक्सपेंस ज्यादा होने ही चाहिए. एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो दैट मीन्स योर प्लानिंग इज नॉट प्रॉपर और यू आर स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम. Now, the categorize your expenses like least important, important and most important, very important. आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके 3 कैटेगरी कीजिए कि भैया ये खर्चा जो है ये मैं टाल सकता हूँ अगले 2 साल, 1 साल जो भी हो. अभी जरूरत नहीं इसकी. खर्चा करना है लेकिन अभी जरूरत नहीं. दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट प्रायोरिटी. इंपॉर्टेंट बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का भाड़ा है, ये फूड एक्सपेंसेस है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो इमीडिएट खर्चा करना है, कल करना है या अगले महीने ही करना है. एक बार एक्सपेंसिव कैटेगरी हो जाएगी देन यू कैन गो अहेड and try to figure out ways in which you can curtail expenses. अब ये it is easier said or read than actually practiced. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आपका एक्सपेंसिव कर्टेल करो, बड़ा बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है. अभी तो शायद कुछ कॉलेज शुरू हो गए, 2 साल हम लोग घर पे थे. तो कॉलेज शुरू होते थोड़ा सा होता है कि चलो आज एंजॉय करेंगे. तो घर से मैं डब्बा लेके निकला हूँ, घर पे कॉलेज में डब्बा खाता हूँ, टिफिन खाता हूँ. फिर भी बाहर जाके बाद कॉलेज के बाहर जो कैंटीन है या फिर जो भी स्टॉल है वहां पर जाके कुछ ना कुछ में. तो ये जो खर्चे हैं दिस इज एडिंग अ बर्डन टू योर पर्स. तो इस प्रकार से कैसे मैं एक्सपेंस कम कर सकता हूँ. एंड एज आई सेड एंश्योर दैट योर इनकम एक्सीड एक्सपेंसेस. when you ensure that income exceeds expenses, that means naturally you try to reduce the expenses. The surplus fund, इनकम से जितने भी खर्चे मेरे होने के बाद कम होने के बाद, the surplus fund which are having, that is your savings. Now this is the old formula, that is income less expense should be your savings, is old formula. New formula which has come up now, and of course which is given by Warren Buffett. आपने नाम सुना होगा. He is an international investor, or maybe the richest investor in the world. तो उन्होंने जो फॉर्मूला बताया है, इनकम लेस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंसेस. आपका जो भी इनकम है उसमें से पहले आपका सेविंग बाजू में कर दो. हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनकम आ गई तो हम लोग खर्चा करते जाते हैं, कीप ऑन स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो बचेगा, दैट बचेगा इज माय सेविंग्स. यू कैन रिवर्स दिस फॉर्मूला. इनकम लेस सेविंग, पहले सेविंग बाजू में निकालो. वॉट एवर 15% है, 20% है, 25% है, एज पर द फैमिली नीड्स. Once that is fixed, my savings is fixed, then the balance amount which is 80%, 85, 75 जो भी है आपका, that should be allocated for your monthly expenses or daily expenses. So इस प्रकार से एक जरा अपने को गणित बिठाना पड़ेगा कि my income should exceed my expenses and income less saving should be my expenses. So then you are sure कि my savings is fixed now. जो भी अपने फैमिली डिसाइड किया है, that savings is fixed, and from that savings जो हमने बताया था, इमरजेंसी, फ्यूचर, ये जो हमने सेविंग का एक्सपेंस के लिए हम लोग बजट करने वाले थे, that you can plan from this savings account. Next slide, madam. Can we go to the next slide? Ruchika madam.
Am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, can you go to the next slide, madam? Ruchika ma'am? Is she there? I think some problem with her internet Or connectivity. if you can, madam, allow me to share the screen. Yes, sir, of course, you can share the screen, sir. But it will not be on the slide sing mode, but I'll share the screen. But she No, will this have is to stop. first stop sharing. Yeah, I'll do it. I'll do it. I'll do it. Is it visible now? It has started being shared. Sharing now. Okay. Is it visible now? Investment. Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. Fine. So coming to the earlier side, when we are made some provision about our savings, जैसे हमने expense curtail कर लिया है, then हमने income fix कर दिया, हमारा savings का fix कर दिया है, then actually you go for investment. Investment. What is an investment? निवेश. Investment मतलब निवेश. What is that? कि certain assets like a property, a gold, an insurance policy, investment in share markets. ये जो चीजें हैं, it is an asset which is to generate returns from it over a period of time. Mind this word, period of time. This period is very important. Why it is important? Because मान लो मैंने प्रॉपर्टी लिए, कोई भी घर लिया है, बंगलो लिया है, प्लॉट लिया है, according whatever it may be, I had to give it a time for the value to increase. It cannot increase overnight. See, an asset increases over a period of time. It doesn't increase immediately, except the share market, which is highly volatile. So share investment is an investment, is an asset, but it is highly volatile. But for any other asset than stock market, you have to give a certain period for the asset value to increase, and that is an investment because it generates return. For example, if you buy gold, सोना चांदी जो भी हम लोग लेते हैं, any bullion जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, and we keep it for years, कोई भी अंगूठी बनाई, चेन बनाई, with an expectation of increase in its value, there is an investment. This is an example. Similarly, mutual funds, government security bonds, shares, property, etc., etc. These are various kinds of investment. There are a lot many investment options available in the market. The prime focus of investment in such products is beating the inflation rate. Now, बोलोगे what is inflation rate? The inflation rate is nothing but महंगाई, the cost of living in the country. It varies somewhere between 6, 7, 8%, 8.5%. Government is always trying to curtail it, bring it as much as possible to a livable condition. But my prime focus should be wherever I'm investing, that investment returns that I'm getting, property में से हो, gold में से हो, bonds में से हो, that return should always be more than the inflation rate. For example, inflation पकड़ो 6% है, 6%, then my investment return should be somewhere above 6%. Can be 6, 6.5, 7, 7.5. So that is the basic of investment. Then how do you do the investment? The first thing is investment start only after savings. तो हमने शुरू में देख लिया. It requires discipline and patience. ये दो शब्द बहुत महत्व के हैं. मैं एक पेड़ लगाता हूँ, एक पौधा लगाता हूँ, small sapling. I sow the seed and I wait in front of it for the sapling to grow. There has to be
cannot say आज मैंने बीज बोया है तो इमीडिएटली कल उसमें से एक छोटा सा स्प्राउट आ जाएगा. नो, आई हैव टू गिव दैट अ टाइम. एंड डिसिप्लिन. व्हाट इज डिसिप्लिन? उस पौधे को मैंने ठीक से बैरिकेड किया है. नोबडी शुड स्टैम्पल ओवर इट. इट इज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, इट इज प्रॉपर्ली एयर्ड. पानी उसको मिल रहा है, खाद मिल रहा है, द मैन्योर इज बीइंग गिवन. All this is discipline. Similarly, when you invest in a particular product, I should have some patience for the investment to grow, and there should be discipline. How I'm investing, where I'm investing, what is the investable funds I'm having, what is the period for investing. ये सब it comes in a discipline. और इन्वेस्टमेंट तो फिक्स हो गया. यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. आप लोग सब स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म शुड बी अ गोल. माय कॉलेज, माय नेक्स्ट एग्जाम, ऑल दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल्स. मीडियम टर्म, कॉलेज होने के बाद वे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज और इमीडिएटली गोइंग फॉर अ जॉब और बिजनेस प्रोफेशन. दैट इज अ मीडियम टर्म गोल. And long term will be आपका सर्विस होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद आप क्या करने वाले हो, उसके लिए आपने क्या सोच के रखा है. ये सब चीज के लिए यू रिक्वायर सम फंड, सम मनी. So you should invest such products wherein there is a short term investment goal, medium term investment goal and long term investment goal. और ये सब करने के लिए it is better to start investing at an early age of life, early stage of life. This has been highlighted because it should be clear to all the students attending here कि आप जहां पर भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, at the earliest stage of life you start investing. Why? Because once you start investing, the compounding effect starts appreciating. You know what is the compounding effect? आपने स्कूल में, कॉलेज पढ़ा होगा. There is a two types of interest: simple interest and compound interest. Simple interest is the interest that you get on a principal amount. 10,000 पे 5%, अगले साल वापस 10,000 पे 5%, थर्ड ईयर में 10%. Compound interest is it is interest upon interest. So you start investing early, you get the compound effect and which will grow day by day. So when you invest, there are 5 factors you should consider. The risk the particular investment product is carrying. Share market है, property है, gold है, so and so forth. What is the risk in investing in these products? Return, what will be the return, net return in terms of value, in terms of interest, in terms of dividend. ये सब रिटर्न्स में आ जाते हैं. टेन्योर, व्हाट इज द टेन्योर? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए है. टैक्स लायबिलिटी, आज मुझे उस पर कितना टैक्स रिबेट मिल रहा है. When it matures, what will be the tax liability? उसमें कुछ में टैक्स अवॉइड कर सकते क्या? ये सब चीजें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी. एंड लास्टली द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इज द थिंग, बट जिसे हम हिंदी मराठी में कहते हैं तरलता, कि whenever I require money, I should get the money back. For example, if I invest in insurance policy, एक 10 साल की पॉलिसी ली है और 2-3 साल के बाद आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, द पॉलिसी विल नॉट गिव द मनी बैक बिकॉज दैट इज अ फिक्स पीरियड ऑफ 10 years. सो पॉलिसी इज नॉट लिक्विड. प्रॉपर्टी, घर लिया, प्लॉट लिया, बंगलो लिया, उस साल में मुझे पैसा चाहिए. सो इट्स नॉट लिक्विड बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर टू सेल माय प्रॉपर्टी और फाइंड अ बायर. एग्रीमेंट होना चाहिए, जो मेरे मन में भाव है उसके मन में भाव है. द वैल्यू शुड मैच. देन देयर आर सम लीगल फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट्स है,
all these things take a certain time. So even property investment not. So आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पर आपको जब भी जरूरत पड़े you should immediately get your money back. अब ये स्क्रीन जो है for information you can take a photo of this or a screenshot if you're on a mobile or a laptop. This is only an awareness or knowledgeable thing wherein you can take a proper decision in a savings and investment options. We talked about risk and liquidity in earlier slide. So investing in different financial products and liquidity in both, like savings account, fixed deposit, PPF have the lowest risk. Why lowest risk? Because of saving account आपका, it can be in a bank, it can be in a post office. Savings account आपने सुबह पैसा भरा है, you can withdraw it in the evening. So it is easily available. There is no risk at all. Anytime you can close the account and walk away. Fixed deposit, it's a fixed deposit for 5 years, 10 years. But in between, if you require money, you can immediately go to the bank or post office, close that FD and take the money back. Similarly, PPF, it carries lowest risk because it is 100% backed by Government of India. What is the medium term? Gold, real estate carry medium term risk because depending on market, gold rates can go up or come down. Similar, real estate can go up or come down. So it carries some risk. And highest risk is in a stocks or equity market, which is very, very volatile. You cannot predict the moment of market. So आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 100 का 200 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा. You cannot predict. So investment in share market is highly risky. And about liquidity, investment in real estate is lowest liquidity. As we discussed earlier, property, when I invest in a property, I cannot just come out of the property investment immediately. I cannot say मेरे पास एक घर है, मुझे पैसे दे दो, immediately मैं घर भेज दूंगा. It takes some time. It has to the buyer identification, then the agreement and the registration. All these things will take certain time. So immediately I not get the money back. Medium, fixed deposit, public provident fund, gold. Gold is the lowest medium liquidity because gold में भी वही होता है जैसे प्रॉपर्टी में हुआ है. जो लोग गोल्ड में जिन्होंने लिया है, जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पर, घर वालों को पूछ सकते हैं. जो भी हमारे पास अंगूठी है, चेन है, जो भी हमारे घर पे है, इसको बेचना है तो देयर विल बी सम डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट. एंड हाईएस्ट लिक्विडिटी सेविंग्स अकाउंट. एज आई सेड, आप कभी भी सेविंग से पैसा निकाल सकते हो, कभी पैसे पे उसमें भर सकते हो. सो दिस ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज कि what is the risk level in a particular product and what is the liquidity in a particular product. Another option which is available to all of us is a mutual fund, which we can term as much secure than the other investment products like property or shares. How does a mutual fund function? Student होंगे इस बैच में या इस अटेंडेंस में, मे बी दे नो दिस, बट अदर स्टूडेंट जो भी होंगे आपने शायद सुना होगा. आई विल कोट अ साइट, आप शायद लिख सकते हो उसको, www.mutualfundsahihai.com. The name appears to be a bit weird, just like a sentence, mutualfundsahihai.com. You can visit this site. आपकी जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, इसमें से आपको मिल सकता है उत्तर. कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट्स है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ग्रोथ म्यूचुअल फंड, ये सब आपको वी आर हियर ऑन द टॉप ऑफ द सर्कल इन्वेस्टर्स. हम लोग यहाँ पे जो है 50-60 लोग हैं.
we are called investors. We want to invest our money, hard-earned money in some products. तो हम लोग क्या करेंगे, we'll select a mutual fund, particular mutual fund, and then we'll pool our money depending upon our ability. जो कोई 500 डालेगा, कोई 1000 डालेगा, कोई 10,000 डालेगा. यदि somebody will put 5 lakhs rupees, depending. All this money when it comes to fund manager, mutual fund के पास एक fund manager होता है. For each product there is a different fund manager. They'll take the money from you and they will invest on our behalf in various securities. What are the securities? They may invest in share market. They may invest in certain industries, certain sectors, government bonds, of investment products. And इसमें से जो भी income generate होगा, that is passed back to the investor is a pro rata basis. जिसने जितना invest किया है, accordingly it will be flowed back to the investors. So this is the circle which plays when you go to mutual fund. So this not happen overnight. This requires certain time. Like there are mutual funds which have a lock-in period of 3 years, 2 years, 5 years, or 1 year. Accordingly, the investment will grow. The amount that I investment will grow and it will be given back to me. Mutual fund is a mechanism that pools the savings of जमा करके, and investors कौन है? Who share common goal. What is common financial goal? They want the money to be secure, जो भी इनको पैसा है, and they want the money to grow at a particular speed. The money is invested by the fund manager. Fund manager is a mutual fund in different types of securities. As I said, it can be a government bond, it can be property, it can be shares. Even there are certain sectors like banking sector, insurance sector, infrastructure sector, so various sectors available. Mutual fund will give always the market returns and not assured returns. कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं बोल सकता है कि विल गिव 100% और 6%, 10%, 8%, ऐसा नहीं बोलेगा. They give the market, but in the long term, market returns have the potential to perform better than other assured return products. So when you invest in a mutual fund, see the timeline should be anything above 5 to 10 years. So that time, if you give, the investment will grow as per your desire. So why should you invest in mutual fund? Because it is professionally managed. आप जो यहाँ पर 50-60 लोग हैं. I will take over from here, sir, Milind. Yeah, sure, please. Thank you. Please. So now we are going to why we've understood that what mutual funds are. कि थोड़े थोड़े अब क्या होता है म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है कि म्यूचुअल फंड सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास 1000 रुपीज है, तो मुझे 1000 रुपीज का फंड मैनेज जो मेरे बैंक में फंड मैनेजर है वो क्या करेंगे, वो 1000 रुपीज मुझसे लेंगे, 1000 रुपीज उनके किसी और क्लाइंट से लेंगे, 2000 रुपीज उनके और किसी क्लाइंट से लेंगे. तो जब एक फंड मैनेजर बैंक का इन्वॉल्व होता है और वो आपके फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज द बेस्ट. म्यूचुअल फंड जैसे कि आपको बताया गया है और डिटेल में सर आपको लेटर प्रोबेबली ही tell you more about the equity mutual funds and why it is risk factor को calculate करके उसमें invest करना, why it is feasible, why it is convenient. But अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब मैं ये एक फंड मैनेजर के पास जाती हूँ, मेरा 1000 रुपीज है, मेरे साथ दूसरे जो लोग इन्वेस्टर्स है जो बैंक को अप्रोच करें कि भाई हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो वो क्यों कर रहे हैं? Why are they choosing mutual funds? They are choosing mutual funds because number one, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. कोई नौसिखिया नहीं बैठा है वहां बैठ के मैनेज कर रहा है, बिकॉज वो आपके फंड्स मैनेज कर रहा है. ही इज आंसरेबल टू द बैंक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही और शी इज आंसरेबल टू द बैंक कि भाई आपने इतने क्लाइंट्स का इतना पैसा लिया, आपने वो पैसे के साथ क्या किया, व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी, ठीक है. सो द मैनेजमेंट ऑफ योर फंड जो हो रहा है वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है. इजी लिक्विडिटी. आज आपको कैश की जरूरत है, आपने अपने म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेशन दे दिया कि भाई मुझे मेरा पैसा जो भी है वो मुझे विड्रॉ करना है. आपको पैसा कुछ 1 या 2 दिन के प्रोसेसिंग में यू विल गेट योर मनी बैक.
ठीक है, जो भी पॉलिसी में आपके लिखा हुआ है, एज पर दैट यू विल गेट द इजी लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। समझिए आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब आप बोलेंगे मुझे ये घर बेचना है, मुझे पैसे की एकदम आवश्यक जरूरत है, कल घर बिक जाएगा क्या? टेल मी इन द चैट बॉक्स, विल यू बी एबल टू सेल द हाउस? आज सोचा कल बिक गया, ऐसा होगा क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइए सब लोग, यस या नो? नो, राइट। सो इसका मतलब है कि इसका लिक्विडिटी जो है वो डिफिकल्ट लेवल का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। बट म्यूचुअल फंड में कैसा लिक्विडिटी है? इजी है। आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, आपको आज कैश की जरूरत है, आपने क्या किया? आपने गया, आपने विड्रॉ कर लिया, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने बैंक में जाके पे इन स्लिप फिल किया, आपने अपना कैश ले लिया। लिक्विडिटी तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दीज अदर थिंग्स। yes or no, everyone is with me? yes। अच्छा, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? रिडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, कोई होता है जो रिस्क प्लेयर, 25 साल का मेल या फीमेल है, अनमैरिड है, अच्छा जॉब कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई लोन नहीं है उसके ऊपर, तो वो कितना रिस्क ले सकता है? उसका रिस्क टेकिंग पावर कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाइस, हाई लेवल का शायद वो रिस्क ले सकता है। वही अगर कोई मैरिड बंदा है, उसका फैमिली मेंबर्स है, उसको घर चलाना है, एंड वो, तो उसका रिस्क लेवल कैसे रहेगा? सैलरी में से वो बस उतना एग्जैक्ट अमाउंट ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर लोन भी है, तो उसका रिस्क कैसा हो जाएगा कैलकुलेट अगर आप करेंगे? तो जब म्यूचुअल उसके साथ फंड मैनेजर बैठेगा और रिस्क के बारे में बात करेगा, तो उसका रिस्क कैसा रहेगा? लो या मीडियम? Are you understanding? As in when your loan responsibilities, घर में आपके ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा है, तो आपका रिस्क उन सब चीजों से वेरी करेगा। ठीक है, इन सब चीजों में रिस्क मैटर करता है। तो जब आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो ये सारी चीजें आपके साथ क्लेरिफाई की जाती है। यस, बिकॉज मार्केट कैसा है? मार्केट इज वेरी डायनामिक। जहां आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो रहा है, दैट मार्केट इज वेरी डायनामिक। रोज अगर कहीं पे सीईओ ने रिजाइन कर दिया तो म्यूचुअल फंड अफेक्ट होगा, या फिर स्टॉक मार्केट अफेक्ट होगा, इट विल अफेक्ट then all the investments that you've done. So all of this, the market is very volatile, is very dynamic. Every day अगर कुछ change होता है कहीं किसी जगह पे, तो that will affect, that will show in the investments that you've made. So that is why in all of this comparison, mutual fund is the safest. Am I clear? और जो वो फंड मैनेजर है, वो ये सारी कैलकुलेटेड रिस्क लेके आज न्यूज में क्या चल रहा है, कैसा मार्केट होने वाला है, क्या फ्यूचर में आने वाला है, वो देख के वो आपके रिस्क को मैनेज करते हैं। Are you understanding? Yes or no? Everyone in the chat box, please reply. Yes, no? Are you understanding? Okay, great, great. Okay, all right. So well regulated market है आपका, रिटर्न का पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं है, there is not lot of operating cost, it is very minimal. एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ठीक है यार, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल लग रहा है, ये थोड़ा सा ये नहीं लग रहा, लेट अस इन्वेस्ट हियर, सो दैट द फंड मैनेजर विल डू। है ना, आपने एक बार अपना ट्रस्ट उनके ऊपर यू हैव टू स्टे अपडेटेड। आपको कॉन्स्टेंटली ये रहना चाहिए कि हाँ भी हाउ आर दी स्टॉक्स डूइंग, how is my mutual fund doing? This you need to understand from the fund manager. एकदम ऐसा नहीं कि चलो वो फंड मैनेजर देखेगा, नो, यू टेक योर टाइमली अपडेट्स। टाइमली अपडेट्स से क्या होता है कि आप इन्फॉर्म्ड रहते हो, अवेयर रहते हो, तो आप अपने डिसीजंस प्रॉपर्ली लेते हो। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है, इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, विल यू बी एबल टू टेक अ टाइमली डिसीजन? नो, यू विल नॉट बी एबल टू टेक। एंड फंड्स में तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि भूल जाओ कि फंड आपने किया। इसका मतलब ये नहीं कि फंड मैनेजर को कॉल लगा के पूछना नहीं है। भूल जाओ का मतलब है कि अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है, तो उसको इमरजेंसी में, घाई में, उसको वहां से खींच मत लो, उसको वहां से विड्रॉ मत करो। आप भूल जाओ कि आपने वो पैसा इन्वेस्ट करे, बट हाउ इज दैट मनी डूइंग, वो पैसे के साथ क्या हो रहा है, ये आपको अपने फंड मैनेजर से कॉन्स्टेंटली पूछते रहना चाहिए कि हाउ इज इट डूइंग दिस मच, प्लीज कीप मी अपडेट। आपको अगर वो कोई रिपोर्ट्स भेज रहे, उसको आप टाइमली देखते रहो। ये सारा फायदा है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ।
So next one is one second. Power of और the compounding. power of compounding. Power of compounding आपको already sir ने बता दिया. The early you start, the better. जितना early मैंने investment किया, अब मुझे आँख खुली, मुझे investment के बारे में मैंने सोचा, PPF के बारे में मुझे पता पड़ा, म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे पता पड़ा, तब तक मैं ऑलरेडी 30 साल की हूँ, है ना. तो मेरे कंपैरिजन में जो 25 साल का बंदा है, उसको मंथली इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है. अगर वो कोई SIP में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है 8% के हिसाब से, ठीक है, तो जो 25 साल में जिसकी आंख खुल गई, जिसने इन्वेस्ट किया, उसने कितना उसको देना पड़ रहा है मंथली 1000 रुपीज. मेरी आंख कब खुली? जब मैं 30 साल की हुई, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 167 रुपीज. टोटल अमाउंट दोनों का सेव हो रहा है. वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो जो 25 साल में जिसने स्टार्ट किया था उसके पास ज्यादा वैल्यू मिल रही है उसको 60 इयर्स में. क्यों? बिकॉज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली. उसका मंथली इन्वेस्टमेंट भी कम था. मैंने क्या, मेरी आंख कब खुली? 30 साल में. तो मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा किया और मेरे पैसे भी उतने नहीं बने. समझ रहे एज फैक्टर कैसे प्ले कर रहा है? एक तो उसने जल्दी स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्ट भी कम किया और उसको पैसा भी ज्यादा मिला. मैंने इन्वेस्ट भी ज्यादा किया और मुझे पैसा भी कम मिला. Are you understanding the power of compounding? Start early. You start with, I think mutual fund में start with some 100, 500 rupees, $1000. आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है ना, उसको सेव करके आप बैंक में जाके बोलो कि यार सर मेरे को ये 1000 रुपीज से 2000 रुपीज से सर चालू करना है. इट इज वेरी इजी. हैबिट में लाना बहुत जरूरी है. एक हमारे पास क्या हैबिट है कि मैम हमने पैसा इकट्ठा किया और वो हमने गुल्लक में रख दिया. क्या हो रहा है? आपका सिविल स्कोर बन रहा है गुल्लक में रखने से, है ना. आप लोन के लिए एलिजिबल हो रहे हो, कोई बैंक देगी लोन? अरे हाँ इसके गुल्लक में 2 लाख रुपए है, चलो वेरी गुड. देगी कोई बैंक लोन? नहीं देगी. आप उस पर कोई इंटरेस्ट कमा सकते हो? नहीं कमा सकते. यू कैन नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इज केप्ट एट होम. आप वो पैसे पे इंटरेस्ट भी नहीं कमा रहे हो और आपको ना ही आप लोन्स वगैरह के लिए एलिजिबल हो रहे हो. क्रेडिट कार्ड देगा कोई आपको? क्या अच्छा हाँ आपके गुल्लक में 50,000 रुपए, चलो आपको क्रेडिट कार्ड देते, 1 लाख रुपए आपका हम देते क्रेडिट कार्ड. विल दैट हैपन? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, येस और नो. गुल्लक में पैसा रखने से क्या सिबिल स्कोर बढ़ेगा? क्या आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे? क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं. वो किससे मिलेगा? वो आपको पैसा इन्वेस्ट करने से मिलेगा. yes or no? everyone is with me? Can we go to the next one? Sir, please can we go to the next one? Thank you, sir. So now it is insurance. अब हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की. इंश्योरेंस क्या है? ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है. अभी हम लोग इंश्योरेंस पे जा रहे हैं. जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर. यस एवरीवन? ओके. So insurance is an arrangement which a company or state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return of payment of a specified premium. जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप उनको EMI पे करते हो. जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हो. प्लीज दोनों का अंतर समझिए जब आप उसको डिफाइन करते हैं. बैंक से लोन लिया है तो हम क्या पे कर रहे हैं? चैट बॉक्स में बताइए. लोन अगर हमने लिया है तो हम क्या पे कर रहे हैं बैंक को? What are we paying? We are paying interest and उसको कहा क्या जाता है? EMI. Thank you Dilaswak, thank you Namrata for answering quickly. Thank you Jayant, Mangesh, Priyanka, Akash, Revati. Thank you guys for your prompt replies. हम बैंक को easy monthly installments दे रहे हैं. वही जब हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तब हम बैंक को प्रीमियम दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? प्रीमियम. इसका अंतर आपको समझ के रखना है? ऐसा नहीं बोला मैंने इंश्योरेंस खरीदा है मैं EMI दे रहा हूँ. नहीं, मैंने इंश्योरेंस खरीदा है, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैंने लोन लिया है, मेरे बैंक का EMI इतना है. Am I clear? Okay. तो ये इंश्योरेंस क्या हो रहा है? इंश्योरेंस क्या बोलता है कि मैडम आपने अगर मुझे हर मंथ में एक स्पेसिफाइड अमाउंट प्रीमियम का पे किया, भरा आपने, तो अगर लॉन्ग टर्म में कल जाके
अगर आपको कोई दिक्कत होती इन टर्म्स ऑफ आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर, थैंक यू. सो आपका क्या हो रहा है उसमें, व्हाट इज हैपनिंग इज कि कल जाके आपको आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ आग वाग लग गया, ऑफिस में आपने वो इंश्योरेंस खरीदा है, आपके ऑफिस को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कार का इंश्योरेंस खरीदा है आपने, 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करा है, आपकी हेल्थ को कुछ गड़बड़ हो गई, या आपकी कुछ अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो गया जैसे कि डेथ, तो हम आपकी मदद के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए हम तत्पर रहेंगे. दिस इज व्हाट इंश्योरेंस सेज. आपके कोई रिलेटिव बोलते हैं कि आप मुझे प्रीमियम दो, आपके घर में कुछ हुआ तो मैं आपको दूंगा 50 लाख रुपए, ऐसा बोलता है कोई? नो, nobody is going to say that, nobody is going to do that. बट ये कौन करेगा? अगर आपने इंश्योरेंस खरीद के रखा है, अगर आपने इंश्योरेंस खरीद के रखा है तो दिस इज पॉसिबल. एम आई क्लियर? यस और नो? ठीक है, ये किससे पॉसिबल है? ओनली विथ इंश्योरेंस. ओनली इफ अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा है तो कल को जाके अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम क्या सोचते हैं, ये रिलेटिव मदद करेगा, वो रिलेटिव मदद करेगा, कोई मदद नहीं करता. नोबडी हेल्प्स. बट व्हाट विल हेल्प यू? इंश्योरेंस विल हेल्प यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी हमको इंश्योरेंस के बारे में भी ये कहा जाता है कि यार आप जो एक मंथली खर्चा करते हो ना, सपोज आप 500 रुपए आप किसी चीज का, आपका फोन का रिचार्ज करते हो, या बाहर आप कुछ खाने पीने में यूज करते हो, या फिर आप उससे कुछ खरीदते हो, तो वो चीज आप अपने इंश्योरेंस के लिए लगाइए, वो पैसा आप अपने इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्ट करिए, है ना. क्या क्या होता है, कौन कौन से इंश्योरेंस करवा सकते हो आप अपने घर, दुकान, गाड़ी, हेल्थ, लाइफ, कहीं पे फायर, ये सारी चीजों का आप इंश्योरेंस करा सकते हो. इंश्योरेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा लाइफ इंश्योरेंस में? अगर आपके जीवन को कुछ हो गया, कल जाके कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइक डेथ हो गया, तो प्रीमियम अगर आपने पे किया है, आज से समझो मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, मैं हर महीने 2000 रुपए भरती हूँ कि भाई अगर कल जाके मुझे कुछ हो गया तो मेरे मरने के बाद मेरी घर वालों को 50 लाख रुपए मिलने चाहिए. क्यों मिलने चाहिए? अब मैं अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, उनका क्या होगा अगर कल जाके मुझे कुछ ऊंच नीच हो गई, तो वो क्या करेंगे? तो उनका जो, देखिए इमोशनल तो वो ऑलरेडी अपसेट है, बट जब मेरे पास इंश्योरेंस है तो क्या हो रहा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में एटलीस्ट मैं नहीं डाल रही. Are you understanding? Yes or no? Everyone is with me. Please tell me in the chat box. Yes or no? मुझे yes no आएगा, फिर ही मैं आगे बात करूंगी. Okay, very good. दिलास, मंगेश, नम्रता and Akashjeet Kate. Okay. Kashish, Samyukta, Tanmay, Revati, they are all replying. Very good. Shantanu, Reena, Gracie. Very nice. Okay. तीजल, बाकी सब लोग सो रहे हैं ना? सच बताना. Everybody else is sleeping ना? मैम आप इंश्योरेंस के बारे में बताओ, हम सो जाते हैं मैम. मैम हम पानी पूरी खा के आते मैम, है ना? यही कर रहे हैं ना सब लोग? बाकी के लोग जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं कॉल पे. कितने लोग हैं? अराउंड 59 people are there on the call. I want everyone, please understand, this is very very important. हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, पर अगर कुछ एक चीज आपको क्लिक कर गई तो it will save you tomorrow. It will make you prepared for your, you'll be prepared for your tomorrow. ठीक है ना? चलिए, तो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कि भाई मेरे बाद मेरी फैमिली को इतना प्रोविजन करके मेरा मृत्यु के बाद वो एकदम फैमिली रोड पे नहीं आ जानी चाहिए, है ना? हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली बोलते हैं अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे. एक और चीज फैमिली मेंबर्स करते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक से मैं डिविएट हो रही हूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे फादर ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने लोगों को पैसा दिया है, कितने लोगों से पैसा उनको लेना है, ये घर की औरतों को, घर के फैमिली मेंबर्स को कभी पता नहीं होता. अपने घर में जाइए, आपके जो अर्निंग मेंबर है उनको पूछिए कि अपन को कहीं पैसा देना बाकी है क्या, कहीं से हमको पैसा लेना है क्या.
अगर वो पर्सन को कुछ हो गया उसके बाद कोई आपको लौटाने नहीं आएगा पैसा. Nobody is going to come and tell you कि अच्छा take this money. They will say give our money, हमको पैसा दे दो. ये सब घर के मेंबर्स के सामने खुला चिट्ठा होना चाहिए कि कहाँ हमने कैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ हमको पैसा देना है. इंश्योरेंस के साथ साथ ये साइड बाय साइड चलता है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत परे रहते हैं, अरे फाइनेंस हमको नहीं समझता, अरे ये है ना ये कर लेंगे. नो, यू शुड नो व्हाट फाइनेंस इज, व्हाट इंश्योरेंस इज, इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से पैसा लेना है देना है, जो भी है यू शुड बी अवेयर. ये मेन मकसद है ये सेशन का कि आपका अवेयरनेस बढ़े पैसे को लेके. हमारे यहाँ पे तो खुले होके बात भी नहीं करते पैसे के बारे में. कहा जाता है नहीं 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 इनको नहीं, पैसे की बात नहीं करते. क्यों नहीं करते? यू शुड टॉक अबाउट मनी. यू शुड नो हाउ टू टॉक अबाउट मनी एंड व्हाट टू डू विथ योर मनी. यस. तो अब आपके घर में जो भी पर्सन वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उनको सबको आपको ये अवेयरनेस देना है की यार आज मैंने म्युच्युअल फंड के बारे में पढ़ा, इन्शुरन्स म्हणजे हे होते, हे सगळं तुम्हाला जाऊन घरी सगळ्यांना सांगायचं आहे. एम आई क्लियर? येस सो नो? यस. चलो लेट्स गो अहेड. सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया मैंने, चिल्ड्रन का इंश्योरेंस ले लिया मैंने, मोटर इंश्योरेंस ले लिया, मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस है, कल को गाड़ी को कुछ हो गया. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है. जानवी, कैन वी टेक द क्वेश्चंस इन द एंड बेटा? जानवी, towards the end ले हम लोग questions. We'll quickly finish because we have very less time. Okay. So let's can we go to the next one? सोशल सिक्योरिटीज कौन कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक नॉन लाइफ यानी एक्सीडेंट के केस में क्या क्या आप कर सकते हैं. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है आप, या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो फिर आप, या फिर कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपीस. अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीस. ठीक है. ये कौन सा स्कीम है? लिख लीजिए अपनी बुक में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है. अच्छा, आपको हर मंथली प्रीमियम कितना पे करना है? 12 रुपए. आपके सेविंग अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा. कौन कौन ले सकता है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? मैम मैं ले सकती हूँ क्या? तुम 12 रुपए का प्रीमियम हर साल पे कर सकती हो, तो तुम बिल्कुल ले सकती हो. 12 रुपए तो हम यार समोसा खा लेते रोज. हमको कितने पे करने हैं? सालाना. यहाँ सिर्फ सालाना 12 रुपए पे करके हमको एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट के टाइम पे 2 लाख रुपए, और अगर कोई बॉडी का डिसेबिलिटी हो गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा. ये हमारे घर के सब लोगों के लिए हमने करना चाहिए, है ना. 12 रुपए का तो हम समोसा खा लेते हैं. यस और नो? यस, है ना. एंड यहाँ पे सर हमारे लिए कुछ अपडेट भी कर रहे हैं, प्लीज देखिए प्रेजेंटेशन में. यस, 9 मंथली. ओके. दूसरा है हमारे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. ये क्या है? ये इंश्योरेंस कवरेज है 2 लाख रुपीस का, है ना. कितना? 2 लाख रुपीस का ऑन द इवेंट ऑफ डेथ. ठीक है. इसमें प्रीमियम कितना पे करना है हमको? 330 रुपए. ये कौन कौन ले सकता है? 18 से 50 साल के बीच में अगर आपकी आयु है, आप साल के 330 रुपए अरेंज कर सकते हैं. पर डे के हिसाब से सर ने यहाँ नंबर बताया 1 रुपए से भी कम, है ना. अगर आप 1 रुपए से भी कम का इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ के लिए नहीं कर सकते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क है कि यार मुझे मेरी लाइफ का वैल्यू है कि नहीं. यस और नो? तो प्लीज ये स्कीम्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है, प्लीज लिख लीजिए कहीं पे. आपको करना क्या उसका भी प्रोसेस हम बता देते हैं कि आपको अपने बैंक जाना है. आपका जो भी आपको पर्सन वहां पे मिल रहे हैं वो बोलते हैं हाँ मैम, बोले आपको मुझे आज से मेरे लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट करनी है, या फिर मुझे मेरे लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करनी है. पैसे, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए. ये आपके लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लाइफ के लिए सिक्योरिटी है. आज ही बैंक जाके ये करा लेंगे. एम आई क्लियर? ये सेशन अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना 1 आवर 2 आवर्स वेस्ट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? आप आज ही बैंक जाएंगे अपने,
और ये स्कीम को रजिस्टर करके आ जाएंगे कि मैम आज सर आज हमने सुना है, हमको रजिस्टर कर दो, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत कम रुपए ना बेटा, 1 रुपए 2 रुपए दिन के लग रहे हैं, ये इतना नहीं कर सकते कि हम अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, घर में 4 जन का है 4 जन का करा लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मंथली स्कीम वाला 12 रुपए वाला इज वेरी गुड, गेट योरसेल्फ डन। पड़ोसियों को भी बता दो कि जा चल मैं चल रहा तू भी करवाते। Yes or no? In banks and post offices both. Thank you so much मिलिंद सर for adding this. कि आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके ये करवा सकते हो, आप जाके ये बैंक्स में भी करवा सकते हो। Yes or no? अब एक और हमारे पास है, नेक्स्ट है अटल पेंशन। सर कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? द अटल पेंशन योजना। इसमें क्या हो रहा है, 18 से 40 साल। अच्छा, मैं आपको इंश्योरेंस में प्लीज एक और वेबसाइट है policybazaar.com, उसमें आप सारे इंश्योरेंसेस चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट ऑल, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सर ने, देखिए नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ और चैट बॉक्स में www.policybazaar.com, ठीक है। उसमें आप इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। I hope I've got the website right, sir. मैंने वेबसाइट राइट लिखा है, जस्ट होप दैट। एक सेकंड, I just quickly paste. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहे, है ना। अवेयर एक चीज है, अवेयरनेस कब हो रही है आपकी, अब भी हो रही है। इसके बारे में एक्शन कब लेना है, आज ही लेना है। इसके बारे में एक्शन कब लेना है, आज ही लेना है। यस और नो? पेंशन प्लान्स आप किस पे जाके ये चेकआउट कर सकते हैं, apy.org, ठीक है। आपके एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है ना, आप कमा नहीं पाओगे, है ना। आपकी या तो आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपका कुछ हम वीक होते जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम लोग वीक होते जाते हैं। तो हम सारी उम्र कमा सकते हैं कि अगर हम 80 90 100 साल जीते हैं। हम 60-70 के लोग जनरली रिटायर हो जाते हैं, 60 आजकल तो लोग इतनी बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, 50 में 40 में लोग रिटायर हो रहे हैं। कुछ कुछ यंग लोग ऐसे हैं जो 40-50 में रिटायर बोले हमने पैसा जमा कर लिया हमारे रिटायरमेंट के लिए, अब हम एंजॉय करेंगे। तो ऐसा कोई प्लान आपको अभी से, पेंशन प्लान अभी से आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे ये उम्र के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कैसे एक इनकम का सोर्स, मंथली इनकम का सोर्स आता रहे। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ओके 10 minutes more, okay ma'am, done. We will do this a little faster. Sir, can we go to the next one? So Atal Pension Yojana, you can quickly go to the website and check out कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। सो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाते, आपके पास वेबसाइट ऑलरेडी है, हमारे पास 10 minutes है। सो विल क्विकली गो थ्रू द नेक्स्ट वन। इसकी ये स्कीम की सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। नाउ लेट अस गो टू लोन्स। लोन्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एजुकेशन लोन आपको मिलता है, पर्सनल लोन आपको मिलता है, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, कार लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स भी एक तरीके का लोन ही है, कैसे वो हम लोग समझने वाले हैं आगे। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जब आप लेने जाते हैं तब बेसिकली ये होता है कि आपको लोन मिलने के बाद उसके रीपेमेंट का क्लॉज ऐसा होता है इन विथ मोस्ट ऑफ द बैंक्स कि आप जब अर्निंग मेंबर, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर ले अपना स्टडीज के बाद, तब आपका एक्चुअल रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है। जिस स्टूडेंट के लिए लोन लिया गया था उन्होंने अपनी जॉब कहीं पे स्टार्ट कर दी है, सिक्योर्ड है, उसके बाद उसका रीपेमेंट चालू होता है। बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं 80E के अंडर द IT एक्ट, प्लस आपको बहुत सारी प्रोत्साहन दिया जाता है कि नहीं आप पढ़िए। अगर आप अच्छी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, हमको बहुत सारी कॉलेजेस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है कि नहीं यार अच्छा कैंडिडेट है तो मेरे कॉलेज में है, अच्छा मार्क्स करने वाला। वैसे ही सारे कॉलेजेस भी चाहते, बैंक्स भी चाहते कि यार अगर कोई अच्छा है, मेरिट होल्डर है, अच्छा है, हमारे पास एजुकेशन लोन लेने आ रहा है, कल जाके यू नो दे विल लाइक टू प्रमोट दैट, है ना। हमारा लोन भी जा रहा है और क्योंकि आप डिजर्विंग है तो आप उसको पेमेंट के भी चांसेस आता है
है ना। एक नौसिखिए को लोन देने से कोई पढ़ा लिखा है जो अच्छे एजुकेशन के लिए जा रहा है, उनको पता है वहां से मनी विल ऑल्सो कम बैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे यूनिवर्सिटी बोलती है अगर हमारे यहाँ कोई अच्छा मेरिट होल्डर आता है तो यार हमारा हमारे कॉलेज का रेपुटेशन नाम अच्छा होता है। सो एजुकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है और चाहती है कि लोग ये एजुकेशन लोन का फायदा रहे, अच्छे मेरिट में पढ़े, अच्छी क्वालिफिकेशन पाए और फिर फ्यूचर में ऑब्वियसली अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करे। यस, सो एजुकेशन लोन में क्या क्या चीजें होती है? ट्यूशन फीस इज यस, सो अप टू 40 लाख का अनसिक्योर्ड लोन होता है, 4 लाख का आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। 4 लाख आपको कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी है, कोलेट्रॉल नहीं रखना है और थर्ड पार्टी का आपको गारंटी रिक्वायर्ड नहीं है। 4 लाख से 7 लाख के बीच में थर्ड पार्टी आपकी कोई चाहिए जो प्रूफ बोले कि हाँ भाई ये वापस लोन पे करेंगे। और 7 लाख के अबव का अगर आप लोन लेते हैं 7.5 लाख और प्लस का, तो आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है, थर्ड पार्टी की गारंटी भी रखती है। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं गिरवी? प्रॉपर्टी, LIC का पॉलिसी, सिक्योरिटी मैचिंग टू द लोन अमाउंट, गारंटी फॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो 4 लाख का अगर आप कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, अच्छा मेरिट होल्डिंग कैंडिडेट है, तो उसको 4 लाख तक का एजुकेशन लोन कब मिल जाता है? कुछ आपको गिरवी भी नहीं रखना है, ना ही किसी थर्ड पार्टी को प्रूफ के लिए लाना है। अगर 4 से 7.5 लाख का लोन है तो कुछ गिरवी भी नहीं रखना है, पर थर्ड पार्टी का कोई आपको लगेगा क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। और 7.5 लाख और ऊपर के आप एजुकेशन लोन अगर ले रहे हैं तो आपको कुछ गिरवी भी रखना है। आप अपनी प्रॉपर्टी या LIC आपने खरीदी हुई है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, वो आप गिरवी रख सकते हैं। और साथ में थर्ड पार्टी भी लगेगा कि नहीं ये वापस करेंगे लोन। यस और नो एवरीवन? Milind sir, you would like to add anything to the education loan, sir? No, correct. You're on the right track. Okay, sir. Thank you. Sir, can we go to the next one? Okay, let us go. CIBIL. Yes. So now we are going to talk about CIBIL. Just a second. So what is CIBIL? CIBIL का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, क्या करती है ये? सारे जो आपने लोन लिए हैं, जो आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ये इंफॉर्मेशन क्यों काम आती है कि भाई ऑलरेडी इनके कितने लोन हैं, ऑलरेडी इनके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने कितनी इंक्वायरी करी है लोन के लिए, कहीं पे लोन लिया है कि नहीं लिया है, क्या इन्होंने लोन लेने के बाद उसको रीपे किया है, क्या इनको दूसरा लोन दिया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास होती है। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए आपका? 300 से 900 के बीच में। और अच्छा स्कोर कौन सा होता है? आई थिंक 700, 750 एंड अबव इज अ गुड स्कोर। मिलिंद सर? Yes, any score between 700 and 750 and more is a good score. 800 plus is fantastic, बहुत अच्छा, आपको अच्छे से लोन्स मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। पर अगर आपका स्कोर 301 है, 320 है, तो आपको कंपनीज लोन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो आपका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री देखेगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। यस और नो? ठीक है, सो दैट इज सिबिल स्कोर। तो अगर आप लोन ले रहे हैं उसका पेमेंट रीपेमेंट टाइम पे करिए, बिना किसी डिले के। अगर पॉसिबल है तो 3 दिन पहले ही अपना चेक लगा दो। अगर आपका कोई लोन का पेमेंट 3 तारीख को है, आप महीने के उस महीने के पहले की 30 तारीख को ही लगा दो अपना चेक, ताकि आपका डिले ना हो। एम आई क्लियर? तो उससे क्या होगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा लगेगा। सिबिल बोलेगा कि नहीं ये पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है, इनको लोन दो आप, कोई टेंशन नहीं है। यस और नो? एवरीवन इज विद मी? Sir, we will just go to the beware of the frauds wala slide, sir, because I don't think we have time. So there are other loans as well, जैसे कि कुछ ऐसे और loans है, मुद्रा लोन जो आपको गवर्नमेंट देती है। ठीक है, उसमें भी कैटेगरीज होती है। वो लोन्स के बारे में भी आपको मैं वेबसाइट दे दूंगी, या फिर आपको लोन्स के बारे में हम लोग बता देंगे। आप उसको सर इफ यू कैन पुट जस्ट पुट द नेम ऑफ द लोन, द मुद्रा लोन, इन द चैट बॉक्स।
ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमको वो लिखा है यहाँ पे। एंड उसके पहले हाँ हाँ, सो इफ सर आपको थोड़ी सी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे जो पीपीटी में वो वहां पे आपके लिए पेस्ट कर देंगे, आप उसको रीड कर सकते हैं। हम लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम लास्ट पार्ट में, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द डे, बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। आपको ओटीपी, आपका सीवीवी, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डेबिट कार्ड नंबर, ये सब किसी के भी साथ कोई भी सर्कमस्टेंसेस में शेयर नहीं करना है। एक बहुत बड़ा सर्कल है जो सिर्फ आपके पैसे ऐंठने के लिए बैठा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, ओटीपी, आपको ईमेल आता है, किसी का फोन कॉल आता है, हमको जैसे ही मैसेज आता है ना, आईसीआई ऐसे कुछ उल्टा लिख के आया, आईसीआईसी बैंक के बाद कुछ और ऐसे वो उल्टा सीधा लिखेंगे, बैंक इन्फो ऐसा कुछ, हम तुरंत क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर देते हैं। मत करिए, अगर आपको सोर्स नहीं पता है, डोंट डू इट। अपने बैंक जाइए, अगर आपको कोई भी कॉल आता है ना, आप बोलिए रुकिए, मैं बैंक आ रहा हूँ, मैं बैंक जाके मेरे कर लूंगा, मैं ये फोन पे, आप कट कर दीजिए कॉल। आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है ऑफिशियली, गो टू द बैंक एंड डू इट। आपको 10,000 रुपए कैशबैक मिल रहा है, 500 रुपए कैशबैक दे रहा है, हम 1 रुपया देते हैं क्या किसी को? आप मुझे बोले रोड पे कोई हमको जाके बोलते हैं मुझे 1 रुपया दे ना, हम देते हैं? आपको कोई 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए क्यों देगा? नहीं देगा। बिवेयर, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, गो टू द बैंक एंड डू इट इन पर्सन। फोन, ईमेल, मैसेज, डोंट डू इट। पूरी गैंग बैठी है आपके पैसे ऐंठने के लिए। इस हिसाब से अपने पैसे का ट्रांजैक्शन करिए, बहुत सतर्क रहिए, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर। यस, ठीक है। सो मैम वी विल क्लोज। सर मिलिंद सर, एनी क्लोजिंग नोट्स? Yeah. Can I share this? श्योर सर, Please, श्योर। thank you, madam. This is a snapshot of investment options which are available for you. You can take a screenshot or a picture of this. We had discussed about 5 things: risk, tenure, liquidity, returns and tax. आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, some options are highlighted here, जैसे इक्विटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, बुलियन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एंड बैंक एफडीज और बैंक इन्वेस्टमेंट्स। इसमें रिस्क कितना है, व्हाट इज द टेन्योर, व्हाट इज द लिक्विडिटी, रिटर्न्स कितना आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंड टैक्स लायबिलिटी. So this is a snapshot available to you. As I said earlier, PPF is a no risk investment public provident fund because 100% backed by government of India. 15 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. After 15 years, you can extend it for 5 years more again. 5 करके बढ़ा सकते हो उसको. Partial withdrawal allowed है. After 7 years, you can withdraw 50% of your investment. 7.60% tax-free interest है. Now this has been reduced to 7.1% or 10%. So this is a very good investment. आप में से जिसको भी इच्छा है अपने पेरेंट्स से, घर वालों से बात करके you can make an investment. Minimum 500 rupees per year and maximum 1.50 lakhs per year. इसके बीच में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो. It is 100% tax free. तो ये एक अच्छी स्कीम है. So this you can take a just आपकी information के लिए various investment options which are available to you in the market. So with that we conclude the session. आप में से किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, any doubts? I'll stop sharing this. So you Yes, can be, students, you can ask your questions now. If you want, I can unmute you. or you can put in the chat box. Yes, that will be better if you use the chat box because a lot of information has passed from these two people to us. It will take some time for a person like me also to digest this and assimilate. But yes, I have heard about these things and I am very happy that today all the youngsters are getting to know about this from the industry itself. Okay.
So in any ways, Ruchika ma'am is associated with us, and if you have any further questions, we can later on also put it to her. But Milind sir is here, and if you want to ask him something, please go ahead and put it in the chat box. There were a lot many things. They told you about insurance. They told you about the PPF and the mutual funds, and why basically savings are important and why investment is important. Okay, and how, this meager amount of 500 rupees also happens to be a great amount where investments are concerned. Right. I think your session was quite self-explanatory. That's why, yes, there is still a question, ma'am. किसी की death अगर accidental नहीं हुई, normal हुई, तो उसका return मिलता है क्या? Good, good. Insurance में there are two types of coverages. One is accidental coverage and one is a normal. तो आपने जो पॉलिसी ली है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन्स लाइफस्टाइल, यू कैन कवर योरसेल्फ. जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मिल्स में काम करते हैं, साइट्स पे काम करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, तो दे कैन टेक सच पॉलिसी बिकॉज उनको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है. बट दोज हु आर कंपैरेटिवली सेफर मोड ऑफ सर्विस, ऑफिस में काम करते हैं या फिर बिजनेस में काम करते हैं, दे आर इन द पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव लेवल, तो उनको उनके जीवन में एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, but in this particular category mein accidents occur very very rarely, so they can take a normal term plan or other insurance products wherein any type of, I can use the word death, it can be accidental, it can be normal death also, old age also, or due to illness also, that can be covered. So आपको अगर इस प्रकार से करना है तो you can talk to insurance agent or easily go to the policybazar.com site and select a plan suiting to your requirements. तो उसमें आप ले सकते हो. I suppose Aniket has got his answer. Yes, any more questions, please? कोई भी सवाल हो सकता है, बेझिझक पूछ लीजिए. ऐसे नहीं है कि मैम सर क्या सोचेंगे, मैंने इतना सिंपल सवाल पूछ लिया, या वैलिड सवाल है या नहीं. दिमाग में अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए. We are all here to learn. Nobody knows, nobody is a god over here. Everybody is in the learning process. I just hope it was fruitful for everyone, ma'am. I just Yes. hope the training. Yes, yes, yes. And what we can do is I'm going to send this recording to the other class groups also. So अभी नहीं देखा है तो asynchronous learning होता है हम लोगों के यहाँ, तो they will see it and they will fill in a feedback form. So if you have 5 or 6 questions based on whatever you said today, please post it to me so that I'll send this feedback form so that we'll understand. We'll send this recording as well as the feedback form. Sure, ma'am. Sure. That is Madam, the you can do best. one thing. Yeah. You can formulate a Google form and share it with madam. Sure, I'll do that, sir. No problem. Pranjali madam, na? Yes, ma'am. Yeah, Yes, sir. Sorry. So you can give that to madam, and she Sure, can take sure. a feedback from the students, which can be kept on the record in the office. Yes, definitely, sir. I'll do that. I'll share the form with ma'am. Yeah, please. So for us also, it happens to be a very important document because we also understand, I mean, there is no record how many students have actually seen this. So when a feedback form is circulated, they see the recording first and then fill in the feedback form. This way it reaches to larger audience also. Right. Now I think this group which is attending today, they're all students, na, from first year, second year. It's a varied group, sir. It's a Ranging from? totally first year to maybe the PG classes also. PG classes. Okay, good. Yes, BCom, this was BBA, for the- BCCA. This was for the students which you shared today. But if you want to have similar interactions with your faculty or your college staff, so for them the topics will be different. You can arrange that too. Yeah, The ma'am. topics will be different. Yes. If you are interested, you can talk to your college authorities and come back to us. Madam will coordinate. And the topic will be financial literacy, but the subject matter will change. Sure. I will It will really be more like advanced. my- It will be more yes. advanced. Like this is only basic.
Right. आपको इच्छा है तो आपण असं करू शकतो. Right, right, right. We will definitely have, sir, Yeah. for the staff, that is the teaching staff as well as the non-teaching staff also. Right, right. Both you can They have. should Yes. also be trained in this Correct, field. correct, correct. Yes, sure, sir. I think we come to the end of this program. I'm really thankful to Milind sir, Sure. Ruchika ma'am, both of you Mm. have been gracious to, train our students, make them aware of all the possibilities. Money can beget money. I think this is the word, because simply correct. keeping the money in the savings bank account, giving you 3%, 3.5% returns is a bad idea. The same amount of money can be put into different things, and you can increase your own money and have a nice lifestyle instead of just depending upon your regular salary. This can be another way of increasing the money. That is what I have understood. Thank you so Correct. much Correct. to be a part of this program. Students, we meet again with such and many more beautiful and interesting programs. So we'll meet at that point of time. Thank you so much, sir. Okay, thank you very Thank you much. so much, ma'am. Thank you so much, Milind